حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ تمہارا الہ تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہے، اور تمہاری بیماری خود تم ہی کی ہے لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے چہرے کے فارغ بال غائب ہو جاتے ہیں۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکتے رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہاضمے کے نظام کا ڈسٹرب ہونا ہے، اور اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ خوشی سے کھانے سے جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ ناظرین، جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگیں تو ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو تو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو تو اس دن صبر کرنا۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لو، انشاءاللہ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کریں۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچ و فکر سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، صبح کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ ناظرین، گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی کے نہانے سے آپ کی اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں تیرتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ناظرین، سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ساتھ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، اللہ نے چاہا تو بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خرخرہ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دھانتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تمہارا یہ مرض تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ لیکن اس دھانتی نے آپ کی ان مبارکباد کے جواب کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مرض پاک کرنے والا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار تو ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر رہے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جن لوگوں میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کسی کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔
खीरे को चेहरे पर रगड़ देने से दाग दूर हो जाते हैं। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अल्लाह ताला का फरमान है कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ क़यामत के दिन मैं खुद फरियादी बनूंगा। एक तो वो शख्स जिसने मेरे नाम पर वादा किया और वादा खिलाफी की। दूसरा वो शख्स जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेचकर कीमत खाई। तीसरा वो शख्स जिसने किसी को मजदूर किया, फिर काम तो इससे पूरा लिया लेकिन इसकी मजदूरी ना दी। औरत को हमल ठहरने के बाद अगर उल्टी या कै आने का मसला हो तो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करें। जो औरतें तंग कपड़े पहनती हैं, इनको पेशाब के कतरे आने का मसला हो जाता है। बतख के अंडे खाने से आप दोबारा जवान नज़र आने लग जाओगे। बतख का सूप पीने से मैदा साफ और तवाना हो जाता है। अगर कोई बच्चा अपने बड़ों से ज़ुबान दराज करता है और नाफरमान है तो इसको छोटी मोटी जिम्मेदारियां सौंप दिया करें, जल्द ही अक्लमंद हो जाएगा। अगर वजन में कमी करना चाहते हो तो ये चीज़ें पेट भर कर खाओ। लीमू, खीरा और बंद गोभी के पत्ते, अलसी के बीज भूनकर बारीक पीस लें और रोज़ाना खाली पेट 1 चम्मच पानी के साथ लें। ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। चलगूजा खाने वाले इंसान की जिल्द नहीं फटती। जो ज़्यादा ठंडा पानी पीता है, इनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है और मोटापे में कमी आती है। बकरी घर में पालने से आप में सब्र आ जाएगा और दिल नरम हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा नबी नहीं भेजा जिसने बकरियां न चराई हों। इस पर लोगों ने पूछा कि आपने भी बकरियां चराई? फरमाया कि हाँ, कभी मैं भी मक्का वालों की बकरियां चंद सिक्कों की तनख्वाह पर चराया करता था। नाजरीन, देसी मुर्गी का सूप पीने से कमज़ोर बंदा भी सेहतमंद हो जाता है। अगर किसी का गला बैठ जाए तो वो सौंफ का दाना चूस ले। ऊपर वाले ने चाहा तो आवाज़ इसी वक्त खुल जाएगी। दिल के मरीजों को पीने के लिए ठंडा पानी हरगिज़ ना दें, वरना इनके मर्ज़ में और इजाफा हो जाएगा। खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है और दिमागी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। वज़न कम करना है तो हमेशा खाना खूब चबाकर खाया करें। चाय, कॉफ़ी और दूध में शक्कर कम इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा रेशे वाली ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें और रूटीन के साथ वर्जिश किया करें। अगर सीने की बलगम से तंग आ गए हैं तो खजूर खाएं। खजूर बलगम निकालती है और सांस की बीमारियों को दूर करती है। दिन में 3 बार फजर, असर और इशा के वक़्त 3-3 खजूरें खाएं। बच्चे के पेट के कीड़े ख़त्म करने हैं तो कलमंजी को पानी में उबाल लें और इसका पानी रात को सोने से पहले बच्चे को पिलाएं। ये पेट के कीड़े ख़त्म करने का एक बेहतरीन तरीका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि किसी के बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह इस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ़ फरमाता है। नाजरीन, अदरक का कहवा पीने से फालतू चर्बी ख़त्म हो जाती है। इसको पीसकर तेल में जलाकर मालिश करने से जोड़ों और पाँव का दर्द भी दूर हो जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब किसी घर में किसी की वफ़ात हो जाती है और इसकी वजह से जो औरतें जमा होती और फिर चली जाती तो सिर्फ घर वाले और ख़ास औरतें रह जाती तो आप हंडी में तलबीना पकाने का हुक्म देते हैं। वो पकाया जाता, फिर शरीद बनाया जाता और तलबीना इस पर डाला जाता। फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसे खाओ, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमाते थे, तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून देता है और इसका गम दूर करता है। नाज़रीन, उल्टी, मितली या पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर पानी पी लें। अल्लाह के फजल से फ़ौरन आराम आ जाएगा। ज़्यादा ब्रायलर मुर्ग के सालन खाने से आपके बाल जल्दी गिर जाएंगे। कड़वे बादाम कभी मत खाएं, इससे आंखों की बनाई कम हो जाती है। ज़्यादा ठंडा पानी के इस्तेमाल से बचें, इससे बाल झड़ने लग जाते हैं। केला खाने से क़ुव्वत बदा के अंदर बेपनाह इजाफा होता है। मर्दाना कमज़ोरी के शिकार लोग उसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाली पेट जानबूझकर सांस लेने से छाती की बलगम खुलकर आएगी। अगर जोड़ों और घुटनों में दर्द शुरू हो जाए तो इन पर जैतून के तेल से सुबह शाम मसाज करें। चंद दिनों में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला ख़त्म हो जाएगा। अखरोट खाने से बाल बेहतरीन हो जाते हैं। अखरोट बांझपन की बीमारी दूर करने में भी मददगार है। नहार मुँह अनार खाने से खून की कमी 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। ज़्यादा ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी महलिक बीमारी का सबब बनता है। चेहरे की जिल्द चमकती दमकती बनानी है तो चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करो। जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं, इनके सर की जैतून के तेल से मालिश करें, बच्चे रोएंगे नहीं। जो औरत रोज़ाना इमली और आलू बुखारे का शरबत पीती है, इसका रंग कभी काला नहीं होता। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो तो सोते वक्त ठंडे पानी में पाँव भिगोया करें। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई औरत अपनी जगह से उठ जाए तो इसकी जगह पर इस वक्त तक न बैठो जब तक कि वो जगह गर्म रहे।
नाज़रीन, पेशाब करते वक्त बातें करने से बोलने की बीमारी लग जाती है। भिंडी की सब्जी खाने से शुगर की मकदार नहीं बढ़ती। बेर खाने से सांस फूलने की बीमारी दूर हो जाती है। काली मिर्च पेट के कीड़े खत्म करती है और नज़र को तेज़ करती है। अगर हाथ जल जाए तो जली हुई जगह पर सरसों का तेल लगाओ, छाले नहीं बनेंगे। जिनकी नज़र कमज़ोर हो वो रोज़ाना चलते फिरते या बसीरा कर लिया करे। खुदा ने चाहा तो नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तेज़ी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारी हो जाती है। रोज़ाना वर्जिश करने से आप पेट की और शुगर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। जौ का पानी पीने से कुव्वत मदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। एनर्जी ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करना जोड़ों को ढीला कर देता है। मनफी सोच रखने से इंसान जल्दी बुढ़ापे की ज़िद में आ जाता है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपने अल्लाह को कैसे पहचाना। जवाब मिला, शहवत के पत्तों से जैसे बकरी खाती है तो महंगी बनती है, हिरन खाता है तो मुश्क बनता है, और अगर रेशम का कीड़ा खाता है तो रेशम बनता है। इसलिए कोई तो है जो एक ही चीज़ से तरह तरह की चीज़ें बनाता है और वो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर बदन में सूजन का मसला हो जाए तो लौकी का सालन खा लिया करो। लीमू के छिलकों का सफ़ोफ दूध में मिलाकर आधा घंटा चेहरे पर लगा लें, फिर हल्का सा मसाज करें। चेहरा तरोताज़ा महसूस होगा। बदन की बदबू नहीं जा रही हो तो पानी के अंदर गुलाब का अर्क शामिल करके नहाया करो। जोर लगाकर खाना कभी मत करो, इससे आपके मसाने को नुकसान पहुंचेगा। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान का कद उम्मूमन बाप की तरह और वज़न माँ की तरह होता है। रात को हर तरह की टैबलेट खाने से परहेज़ किया करें। अगर पूरे बदन को खूबसूरत बनाना है तो भेड़ का दूध इस्तेमाल करें। करेला खाने से खून साफ़ हो जाता है। मैदे की कमज़ोरी की प्रॉब्लम हो तो साबूदाना बनाकर खाया करें। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी 1 कप बनाकर पी लिया करें। कभी पेट भर कर मत खाओ, इससे मैदे की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। चावल वाले पानी से चेहरा धोने से चेहरे की चिकनाहट ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस द्वार में कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। नाज़रीन, प्याज काटकर अगले दिन के लिए ना रखें वरना पेट की बीमारियां हो जाएंगी। अगर ज़्यादा काम करने की वजह से थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो और जिस्म टूट रहा हो तो 1 कप चाय में थोड़ी सी खसखस डालकर जोश देकर चाय की तरह पी लें। मिनटों में बदन से थकावट ऐसे दूर होगी जैसे थी ही नहीं और जिस्म बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। बैतुल खुला में ज़्यादा देर बैठने से दिमागी बीमारियां लाक होने का खतरा होता है। बगैर चीनी के लीमू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाएगी। पेशाब कतरा कतरा करके आए तो ये मसाना कमज़ोर होने की निशानी है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला तो मिश्री के इस्तेमाल से पेशाब का मसला ख़त्म हो जाएगा। तकिए के बगैर सोने से जोड़ और कमर मजबूत होती है। खाम दूध पीने से मैदे को ताकत मिलती है। चावल खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से गला ख़राब होता है। नीले रंग के कपड़े पहनने से रंग खूबसूरत हो जाता है। नमक और मीठा ज़्यादा खाने से आपको पसीने में इजाफा होगा। दही ज़्यादा खाओ, चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। अजवा खजूर खाने से कैंसर जैसी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। सेहत हमेशा अद्वियात से नहीं मिलती, कभी ये ज़हनी सुकून से मिलती है, कभी दिली सुकून और रूहानी सुकून से मिलती है। कभी ये एक दूसरे के साथ हंसने खेलने से तो कभी मोहब्बत करने से मिलती है। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद रखे और हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।